Hello everyone, my name is Sushil and I'm currently working as a training engineer at Bharat Electronics Limited. So in this video, I will share my interview experience of probationary engineer that is happened in last year. इस बार का भी होगा बट अभी तो लास्ट ईयर का शेयर कर रहा हूँ, ओके, सो दैट जो भी नए जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. सो अच्छा, इस वीडियो मेनली मैं दो पॉइंट कवर करूँगा. फर्स्ट इज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस and second is I create a PDF of 5 interview experience of the different candidate. So if you want that PDF, join our Telegram group. That link is available in the bio. Okay, थोड़ा communication gap है तो please understand this. I'm try to make in English because most of the student also from the south side now, so maybe helpful for them also. अच्छा, so I'm starting with the interview date. Interview date is 5 August 2025. Interview location is Bill Ghaziabad, Officers Colony Club और कुछ भी. So after reaching the interview venue, उसमें कुछ process होते हैं for registration, attendance and undertakings. So there are around 2-3 form you have to fill after reaching to the interview venue. उसके बाद they call you one by one for the document verification. After that they will note your name and according to that आपको बुलाया जाएगा. There are around 5 panels थे at last time and every panel containing 3 or 4 people, mainly 3 people they are containing. Okay, so अच्छा कुछ चीज़ें तो जो भी हैं, जो भी those are working, NOC is must. Without NOC you will not permitted for the interview. This is important. And other than this, one more thing, if you are passed out from last 2 year, then you cannot add the provisional certificate. You have to attach original degree certificate because last time they denied to taking the interview of one person after not providing the original degree certificate. They are attaching the provisional because already he is a 23 pass out, okay, but he is not able to provide the degree certificate. So please make sure about this. बाकी मेरे को बाद में पता नहीं चला हुआ कि नहीं, बट वो सीक्वेंस से हटा दिया गया था. तो ये दो पॉइंट मैंने जो कवर किए. अच्छा, सो इंटरव्यू मेरा पैनल जो था, पैनल नंबर 1 था. तो इंट्रो हुआ. इंट्रो के बाद दे डायरेक्टली आस्क अबाउट द डिज़ाइन. अच्छा, draw the circuit diagram of full wave rectifier. Okay, after that they ask me about my graduate apprentice training and they are not want to know about the what I done in whole the duration. They are mainly specified for the electronics, means they are directly asking what you did in this related to electronics. Have you designed anything or have you worked any kind of project like that? तो दो क्वेश्चन तो ये थे. उसमें मैंने क्या था कि मैं HPCL अप्रेंटिस किया, तो नॉट मतलब ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक्स से. तो मैंने जो किया, मैं जस्ट एक्सप्लेन दैट थिंग्स. ओके, आफ्टर दैट ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन आई ऑल्सो एडेड माई NPTEL सर्टिफिकेशन कोर्सेस. तो उसके बारे में बोला कि यू डन NPTEL कोर्स इन डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन. तो विच काइंड ऑफ सर्किट यू डिज़ाइन इन ड्यूरिंग योर कोर्स कैलिकुलम. तो उस टाइम भी मैंने बताया कि सर इन NPTEL कोर्सेज दे आर जस्ट वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट लिटिल बिट मोर देन व्हाट वी आर स्टडिंग इन आवर कॉलेज, बट वी आर नॉट डिजाइनिंग एनीथिंग इन अ हार्डवेयर. ओके, सो इतना मतलब दिस 2 पॉइंट. फर्स्ट इज रिलेटेड टू अप्रेंटिस कि आपने वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेसिफिक क्या किया, ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला. और देन दूसरा है कि I added a NPTEL certification ना, तो I have to do some kind of circuit hardware kind of thing. तो that is a benefit. but अरे यार NPTEL में नहीं होता ना, डायरेक्ट कोर्स करिकुलम ही होता है जस्ट. तो मैंने एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला कि अच्छा कुछ और क्वेश्चंस हुए, what you studies in digital circuit, and after that they went to the EDC, which topics you studied in EDC. तो मैं जो अपनी करिकुलम में पढ़ते हैं ना गेट रिलेटेड, तो वही मैंने एक्सप्लेन किया कि बेसिक सेमीकंडक्टर, पी इंजेक्शन, BJT, मॉसफेट एंड IC फैब्रिकेशन इन इंट्रोडक्टरी लेवल. आफ्टर दैट दे आस्क मी क्वेश्चन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन BJT एंड मॉसफेट. आई एक्सप्लेन दैट
एंड आफ्टर दैट आई गेस ओपिम का क्वेश्चन था, इन्वर्टिंग ओपिम। उसमें गेन उन्होंने बता दिया था कि हमें चाहिए गेन इतना, तो R1 और फॉरवर्ड रजिस्टर्स की वैल्यू को आप चेंज करके वो तो निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन था, और दो क्वेश्चन मेरे थे। एक लो पास, सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर हमें डिजाइन करना था, वो मेरे से प्रॉपर नहीं हुआ था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आस्क फ्रॉम द AM एंड FM, दोनों का डेफिनेशन, एंड आप डेफिनेशन के साथ साथ उसका इनपुट और आउटपुट का वेब फॉर्म भी मुझे ड्रा करना था। और ये थे मेन क्वेश्चन, यही थे। बाकी एक आध दो बिहेव ऐसे ही थे नॉर्मल, रिलेटेड टू मतलब ट्रेनिंग ही थे, मतलब इन ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, विच काइंड ऑफ वर्क यू आर इन्वॉल्व इन, सो दिस टाइप के क्वेश्चन। सो मेरे से तो इतने क्वेश्चन पूछे गए, और मेरे जो इंटरव्यू मार्क्स मेरे को मिले 6.5, और मेरा जो रिटर्न में मार्क्स था 90.5 था। तो ओवरऑल मेरे को अप्रॉक्स 69 के अप्रॉक्स बना था मेरा, जबकि OBC का कट ऑफ गया था 72। सो दैट्स वाई आई एम नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर आफ्टर अपेयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट दैट इज हैपन इन हैदराबाद, ओके, लिटिल जूनियर कॉलेज, ऐसा कुछ नाम था। सो इसमें से आपके लिए सीखने की चीज़ें क्या है मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं कुछ और भी चीज़ें करके रखा था, जैसे Arduino करके रखा था, मैं माइक्रो प्रोसेसर करके रखा था, बट मैंने उसको अलग से बताने का ट्राई किया। बट वी कैन रिलेट द बोथ द थिंग्स, जैसे दे आर आस्किंग व्हाट यू डन डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, वी कैन एट दैट पॉइंट कि आई डन Arduino प्रोग्रामिंग एंड लाइक दैट, ओके। सो ये चीज़ें मैं बोल सकता था, बट उस टाइम क्लिक नहीं हुआ ये चीज़ें। और ड्यूरिंग माई ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग HPCL में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम किया था, बट क्लिक नहीं होती चीज़ें। तो यू हैव टू फोकस्ड अबाउट योर कोर डोमेन, whether you are working in a different domain, but you have to focus in your core domain also, so that you can negotiate the questions, मतलब you have to little bit fulfill the requirement। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ब्लैंक या डायरेक्टली निगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड कि ये चीज़ आपको होना चाहिए। दूसरा भी वही है कि कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने डोमेन का सर्च करिए, देन उसको ट्राई करिए कि अगर हुआ तो इंटरव्यूअर को मैं इस फील्ड में ट्राई कर लूँगा कि इस फील्ड में वो बात करे, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छा, बिहेवियर की बात करें तो एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग कि मतलब एवरीथिंग इज़ जेन्युइन। एंड इंटरव्यू में मेरे साथ थोड़ा मतलब मैं खुद मतलब आफ्टरनून में गया था, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, बट कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इससे। एवरीथिंग इज़ गुड। Just I guess the reason of getting 6.5 marks is only we have to fulfill what they are asking. If not done directly, then we have to substitute something related to that. तो कहने का मतलब है, I hope you will understand what I'm saying. अच्छा, मैं क्या किया था ना कि मैं सुन के रखा था कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो बोल देना नहीं, लेकिन हर बार ना आप इन 2-3 क्वेश्चन यू आर सेइंग नो, दिस इज नॉट श्योर ना, मतलब दिस इज नॉट ओके। यू हैव टू फुलफिल लिटिल बिट दैट एरिया ऑल्सो, ये नहीं किया सर इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये किया है, ये चीज़ें इससे थोड़ा रिलेट करती हैं। ऐसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डिजिटल सर्किट का ही पार्ट है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो LED ब्लिंकिंग वगैरह का प्रोजेक्ट भी करके रखा है, तो कुछ ना कुछ बोलना है, उस क्वेश्चन को डायरेक्टली ब्लैंक नहीं जाने देना। अच्छा, आफ्टर दैट मैं पहले क्या कर रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट टू मेक यूजिंग PPT एंड पैड, बट आई एम इन home right now, so that's why I'm unable to do that thing. अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक की अगर बात नहीं है तो लिंक इज अवेलेबल इन द चैनल बायो, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर आर ऑलरेडी मोर देन 15 ट्रेनिंग इंजीनियर इज देयर। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम, मतलब ट्रेनिंग इंजीनियर से रिलेटेड, और कुछ भी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएंगे आई गेस इस बार। ओके, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके रखा था जिसको बताना, मतलब ओवरऑल तो मैं PDF प्रोवाइड कर ही दूंगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैं जो इंपॉर्टेंट हैं सभी में उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कि पहला जो है लड़के का जो एक्सपीरियंस है, तो उसने बोला कि मेरे से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा गया, माइनर एंड मेजर दोनों, और FPGA और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल सर्किटरी और फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, फीडिंग एंड इट्स टाइप,
बेल प्रोडक्ट के बारे में आपने क्या जानते हैं, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वेरीलॉग, कोडिंग। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी बिहेवियर, हॉबीज मैं वो चीज़ें ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो सभी इंटरव्यूज में एडिट ही रहते हैं। मैं वो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो हमें पॉइंट आउट करके रखना है, हमें वो चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर चीज़ें आ ही जाती हैं। बेल प्रोडक्ट इज ओके, कंपनी के बारे में जानना इज ओके, बट दिस इज अ योर सब्जेक्ट रिलेटेड ना, तो अगर वो चीज़ें नहीं बनती, दैट इज अ जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट यू हैव टू नो योर कोर। सो दिस इज एंड सेकंड पर्सन का जो इंटरव्यू मेरे को मिला, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे, एफएसएम सीक्वेंस डिटेक्टर, ये सारा से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सी प्लस में डिफरेंस क्या है और ओप्स कंसेप्ट इससे रिलेटेड में बताना था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट ओएसआई लेवल और टीसीपी आईपी मॉडल, यूडीपी प्रेफरेंस, मतलब क्यों कब कैसे यूज करते हैं उसके रिलेटेड। और वही फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट ऑफ बेल, रडार, टॉपिक, डॉपलर शिफ्ट, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। और तीसरे की अगर बात करें तो अच्छा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि एज इट इज़ जो स्टूडेंट ने मैसेज किया था वो चाहिए, तो उसके लिए आप बोलेंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि मैंने चैट जीटीपी का यूज करके पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया। ओके, अच्छा, थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो उससे क्या पूछा, वेरिएशन पैरामीटर यूज्ड इन डिज़ाइन इन एंटीना, ये पहला क्वेश्चन था। मतलब और भी हॉबीज, इंट्रो, आई एम नॉट कवरिंग दैट ऑल। दूसरा डायरेक्टिविटी, टाइप ऑफ एंटीना एंड डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड ओमनी डायरेक्शन, पोलराइजेशन, ट्रू पावर, पावर ट्रिंगल, प्रैक्टिकल एंड आइडियल बिहेवियर। मतलब ट्रू पावर जो है पावर ट्रिंगल से रिलेट करता था, तो वो वाला मैं कंसेप्ट ऐड कर दिया कि उससे पूछा था। और ओपीएम के बारे में पूछा था, मतलब प्रैक्टिकल से डिजाइन करो कुछ चीज़ें, कुछ आइडियल से। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो सारी चीज़ें हैं इसमें, मेरे को ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड ही मिली, तो मैंने क्या इसमें उसने कुछ आइडियो से करके रखा था, तो उससे रिलेटेड उसका डिस्कशन हुआ और एफपीजीए और इसका ब्लॉक डायग्राम हुए। एंड पाँचवा की पर्सन की अगर बात करें तो रेडिएशन पैटर्न, ट्रांसमिशन लाइन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड हाइट ऑफ एंटीना। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। अच्छा, अपन को क्या करना है, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि वो भी पूछ रहे हैं। 6G टेक्नोलॉजीज जो है फिफ्थ जनरेशन है ना, तो 6th जनरेशन भी हो रही है, एडवांसमेंट ज़्यादा, तो एटलीस्ट हमें 5th जनरेशन तक की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और यही है, कुछ प्रोडक्ट पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो वही टारगेट करके चल रहा हूँ इस बार। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। बट एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल प्रोवाइड अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट अगर आपको चाहिए रिलेटेड टू PSUs। आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी कैन डिस्कस इन ग्रुप्स ऑल्सो ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो आई लिखा ना, PCM, अच्छा क्वांटाइजेशन है जो अपन पढ़ते हैं ना डिजिटल कम्युनिकेशन में, क्वांटाइजेशन, इनकोडर इनकोडर का ट्रूथ टेबल पूछ लेगा, तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेल प्रोडक्ट तो है ही, बाकी ये सब चीज़ें, और मॉड्यूलेशन एंड इस टाइप, एक क्वेश्चन तो मेरे से ही हुआ था। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी लग रहा हो तो पूछ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया कि जो है तो बताना है, नहीं बनता तो ज़्यादा लीपापोती नहीं करनी, लेकिन अगर जो फिल कर सकते हैं, जैसे मैं बोला कि दे आर आस्किंग और द तुमने सर्किट डिज़ाइन में क्या किया था, तो मैं बोल सकता था कि मैंने आर्डिनो से ऐसा कुछ डिज़ाइन किया, या फिर मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही बता देता कि मैं ये चीज़ डिज़ाइन किया। तो इट कैन बी लिटिल बिट अ फीलिंग दैट लूप होल काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस तरह की चीज़ें एकदम आपको नो नहीं बोलना। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है, थोड़ा थिंक करिए, तो उसको पुटअप करिए उधर। एंड आपको वॉइस नहीं होना कि इंटरव्यूअर ऐसा है वो हमसे अलग क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, वो डिपेंड ऑन, देखिए क्या इंटरव्यू में सभी यूनिट्स के लोग रहते हैं मेनली, सम ऑफ बिलोंग टू द मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड सम ऑफ फ्रॉम, मतलब प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी रहते हैं। तो कुछ का स्पेशलिस्ट जिस डिपार्ट डोमेन में होगा, उस डोमेन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको बेसिक क्वेश्चन ही मिले। तो दिस इज, यू कैन नॉट चेंज दिस सीक्वेंस, वो तुम्हारे डे के अकॉर्डिंग ले कि कौन सा मिल रहा है, मतलब पैनल कौन सा, बाकी एवरीथिंग इज ओके। आपको ज़्यादा हाइपर किसी चीज़ में नहीं होना, जो चीज़ें आती हैं वही जेन्युइनली बता के आना है, बाकी परेशानी नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड मिलते हैं, अगर कोई गाजियाबाद जा रहा है तो हम भी, मतलब 2 मार्च को मे भी पहुँचे उधर, चांसेस तो यही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। एंड अपकमिंग जो भी है, मतलब अभी BDL का भी कुछ का जा रहा है और ACIL का भी आएगा,
So best of luck for all. Thanks for watching.